प्यारे बच्चों, आई एम कन्हैया पांडे फ्रॉम जिमांस एजुकेशनल एकेडमी. Today we will learn about the remaining topics of number system. Today we will learn about the topics: what are imaginary number, complex number, what is decimal system, which is also known as denary numeration system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. So here are the topics. First we learn imaginary numbers. Complex number, decimal system, or denary numeration system. Binary system, octal system, and hexadecimal system. फर्स्ट वी लर्न अबाउट द इमेजिनरी नंबर. पहले हम लोग काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर क्या है इसके बारे में समझेंगे. इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करते हैं. First, we learn about the square root of 4, 9, 60. A square root of 4, as we know, is plus minus 2, is plus minus 3, is plus minus 4. क्यों प्लस माइनस 2, क्यों प्लस और माइनस दोनों क्यों होता है? इसका उत्तर है क्योंकि जब हम +2 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा? 4 + 4 मिल जाएगा. और -2 का स्क्वायर करने पर भी हमें क्या मिलेगा? +4 मिल जाएगा. 4 मीन्स +4. उसी तरह से +3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? +9. और -3 का स्क्वायर करने पर भी क्या मिलेगा हमें? +9 मिलेगा. इन द सिमिलर फैशन +4 का स्क्वायर करेंगे 16, -4 का स्क्वायर करेंगे 16. लेकिन एक दूसरा, अगर हम इस -4 का स्क्वायर रूट चाहें तो -4 का स्क्वायर रूट न +2 होगा न -2 होगा, क्योंकि किसी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको स्क्वायर करने पर फिर वही नंबर मिल जाती. इसलिए +2 को भी स्क्वायर करेंगे तो +4 मिलेगा. -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी +4 मिलता है. इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो -4 का स्क्वायर रूट हो. उसी तरह से +3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, -3 का तो रूट -9 is neither
+3 or -3. Root -16 +4 or -4. Such numbers are known as imaginary numbers. -√4, -√9, -16 are known as imaginary numbers. So we can easily define what are imaginary numbers. Okay? Negative numbers within a square root, within a square root are known as imaginary numbers. As it is. Any imaginary number can be expressed as a product of a real number and imaginary unit. Root -1 is represented by I, and this is known as imaginary unit. I is known as imaginary unit. The value of I is equal to root -1. So hence root -1 is known as imaginary unit, and it is represented by I, and it is represented by I. The value of I is equal to root -1. So we can write, since I is equal to root -1, hence I square is equal to root -1 square equal to -1. अतः हम क्या कर सकते हैं? So we can write -2 as root 2 into root -1. Root 2i. Root -3 can be written as root 3 into root -1, root 3i. Hence imaginary number can be defined as may be defined as the product of a real number and imaginary number and imaginary unit. As 2i, 3i, -5i, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर.
कॉम्प्लेक्स का हिंदी में अर्थ होता है जटिल, इसका मतलब जटिल संख्या है, कह सकते हो। हा? कैसे इसको डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को? कॉम्प्लेक्स नंबर्स are the combination of a real number and an imaginary number. In the form of a plus bi, where a and b are real numbers and I is an imaginary number. Imaginary number. As on putting the value of a and b, we can find any complex number as minus 5 plus 3i, 5 minus 3i, minus 6 minus 7i, etc. Now we come to the next topic. लोग अंकों की दशमिक प्रणाली, डेनरी न्यूमरेशन सिस्टम और डेसिमल सिस्टम पर विचार करेंगे। क्या है डेनरी न्यूमरेशन सिस्टम? और डेसिमल सिस्टम? बेस 10, हिंदी में अंकों की दशमिक प्रणाली भी कहते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेनरी न्यूमरेशन सिस्टम, ए सेट ऑफ डिजिट्स from 0 to 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. As you see that there are total 10 numbers from 0 to 9. That is why this system is known as डेनरी न्यूमरेशन सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। अंकों की दशमिक प्रणाली करते हैं इसे, बेस 10 होता है। As here 10 indicates the base, 10 यहां बच्चों तुम लोग जानते हो संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 10 के आधार पर कैसे लिखते हैं। इस नंबर को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 स्क्वायर, 5 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0। टू इंटू 10 टू द 100 प्लस 5 इंटू 10 50, 8 इंटू 1, किसी चीज का पावर 0 तो 1 होता है, 200 प्लस 50 प्लस 8
इन ए सिमिलर वे बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंकों का, केवल 2 डिजिट का प्रयोग होता है, 0 और 1 के लिए, और बहुत ही उपयोगी है। बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम जो है कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर केवल यही 2 अंकों की भाषा समझता है, 0 और 1 की। कोई भी सूचना होती है वो 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, यही समझता है, अंकों की ही भाषा समझता है। इसलिए बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम कंप्यूटर के लिए, या ऑक्टल सिस्टम भी कंप्यूटर के लिए काफी उपयोगी है। अब हम लोग आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पर। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी मीन्स 2, जानते हो। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2, केवल 2 डिजिट होंगे इसमें। ए सेट ऑफ डिजिट्स 0 and 1, only 2 digits, is known as binary number system. Base 8, a group of digits from 0 to 7, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total number of digits, as usual, there are 8 digits. So this system is known as octal system. octal हिंदी में 8 कहते हैं, बाइनरी 2 कहते हैं, बेस 2 होगा। डेसिमल या डेनरी का मतलब 10 होता है 10, इसलिए बेस 10 था। इसके बाद आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। Hexadecimal system may be defined as a set of numbers from 0 to 9 and 6 letters from 0 to 9, like decimal system, like binary numeration, 0 to 9, 10 digits and 6 letters from A to F. A, B, C, D, E and F. 0 से 9 में 10 अंक होंगे और A to F में 6 अक्षर होंगे। 10 और 6 कितने होंगे? 16, इसलिए बेस 16 है। Now we will discuss how to convert a number into one system to another system. जैसे डेसिमल सिस्टम में कोई नंबर है उसको हम बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलेंगे, या बाइनरी सिस्टम में नंबर है तो उसको डेसिमल सिस्टम में, या डेसिमल सिस्टम में कोई नंबर है तो उसे ऑक्टल सिस्टम में या हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।